Now let us look at energy. We have seen what is work. Energy is the reflection of work. Work and energy are two sides of the same coin. So they are very similar. But of course, the treatment and understanding part is slightly different. Work, energy, work is done. But can you say energy is done? No. Work is done. Energy is done नहीं. Energy is used. Energy is used to do what? Energy is used to do work. So energy leads to work. More energy, more work. Less energy, less work. So work is done and energy is used to do that work. Work can't be stored, but energy can be stored. मैंने 12 बजे खाना खाया था, अभी 7 बजे, फिर भी मेरे में एनर्जी है. Where is that energy coming from? Because my body knows how to store energy. A battery has energy inside. It is stored inside it. Water of a dam has energy stored in that so that it can produce electricity. So work cannot be stored, but energy can be stored. And that stored energy can be converted to work whenever we want to by switching it on and off. But sometimes we do work to produce energy. The work is done to produce energy. इसका मतलब है एनर्जी कैन बी यूज्ड और एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड वर्क इज ऑलवेज डन. तो वर्क डन कैन क्रिएट एनर्जी और एनर्जी यूज्ड कैन डू वर्क फॉर यू. वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है. वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स एंड एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 मिनट के लिए फैन स्विच ऑन किया है, तो विच एनर्जी वॉज यूज्ड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉज यूज्ड एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी created work in the fan, and the work of the fan gave me air. पंखा माती हवा आ गई, तो 10-5 मिनट में हवा खा दी. Let's look at textual discussion now. Energy, सिर्फ एक पैराग्राफ है, that's all. How does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert force on another object. ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्रिएट कर सकता है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से वर्क होता है. सो एनर्जी स्टोर्ड कैन क्रिएट फोर्स, फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन. व्हेन दिस हैपेंस, energy is transferred from the former to the latter. The second object में move, क्योंकि फोर्स लगाया है तो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा because it receives the energy and therefore do some work. You have seen the game of billiards or snooker. तो स्नूकर में एक बॉल होता है और उसको तुम एक स्टिक से हिट करते हो
And when you hit with a stick, the stick is applying some force. That force goes on to this ball, and this ball goes and hits the second ball, and force is transferred. The force can be transferred from one object to another, and when force is transferred, the balls move. And when the balls move, there is displacement. And because there is force and displacement, there is some work done by the dark blue ball. There is also some work done by the white ball. और ये सारा work done is all thanks to the energy which was stored in your hand. Your hand provided the energy which created some work. So energy and work are same thing. If you use 10 joules of energy, you will get 10 joules of work. But in reality, anything you do, you put 10 joules of energy, you will only get 9 joules of work. You put 25 joules of energy in doing something, you might get only 23 joules of work. You put 1000 joules of energy, but you will get only 924 joules of work. Where is the difference going? It is not possible to destroy energy. 10 का 9 तो 1 जूल एनर्जी गायब नहीं हो सकती. हिसाब बराबर होना चाहिए दोनों तरफ. The reason is, whenever you do something on the planet, outside the planet, in the space, wherever, there is some amount of heat energy generated, and that heat energy is lost in the environment. तो स्टिक से 10 जूल का जब फटका मारा तो फोर्स क्रिएट हुआ. फोर्स की वजह से बॉल यहां से वहां हुआ. बट व्हेन द बॉल्स वेर मूविंग ऑन द सरफेस, they were touching the surface, and when the balls were rolling on that surface, a microscopic amount of heat was generated, जो measure करना impossible है but होता है. And that's why you will never get the same amount of work back. I told you a while ago that I switched on a fan for 5 minutes. When I switched on the fan for 5 minutes, electrical energy was used, say 100 joules, and सामने I obtained work from the fan 90 joules. Where is the 10 joule? It is wasted in the form of heat energy. And therefore, if you touch the fan which is running for 5 minutes, it will be hot. वो अपने आप गर्म हो जाता है, और वो गर्मी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से आई है, विच इज अ वेस्टेज. गोइंग बैक टू द एनर्जी पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट बुक. Thus, first, the object had the capacity to do work, and this implies that any object that possesses energy can do work. एनर्जी का डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क. The shortest and simplest definition of energy मेरे में एनर्जी है मतलब मेरे में कैपेसिटी टू डू वर्क है. मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं थक गया हूं, मुझे सो जाना है, मतलब मैं कोई वर्क नहीं कर सकता. सो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क. Whoever spends energy, he does work. He's getting back work in return. And whoever works, he creates energy. So work and energy are interconvertible and they are one and the same thing, और उन दोनों का यूनिट जूल है. Going back to the textbook paragraph. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. ये definition है. What is energy? Energy is the capacity of doing work. Thus, the unit of energy is therefore same as that of work, which is
जूल। तो 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1 जूल एनर्जी। Sometimes a larger unit of energy is called kilojoules and kJ is used. 1 kilojoule equal to 1000 joules. There are forms of energy. Luckily, the world we live in provides energy in many different forms. The various forms are mechanical, potential, kinetic, heat, chemical, electrical, light. रूटीन लेक्चर में आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू टेल मी एंड लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी. I will make it this time myself. The most basic 2 types of energy is kinetic and potential. और kinetic plus potential is called mechanical energy. तो काइनेटिक और पोटेंशियल 2 टाइप की एनर्जीज है जो हम डिटेल में सीखेंगे, और काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल करो तो उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी. बट अपार्ट फ्रॉम दिस 3, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी मतलब सी के वेव्स में से एनर्जी निकालते हैं, जियोथर्मल एनर्जी मतलब धरती में से जो गर्म हवा या वॉल्केनो लावा वगैरह निकलता है उसमें से हम एनर्जी निकालते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट में से जो एनर्जी निकालता है, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. साइंस जब धीरे धीरे डेवलप हो रहा था तो एनर्जी का लिस्ट बनाया और बाद में पता चला कि इसमें से बहुत सारी सेम है. फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी इज एग्जैक्टली सेम, एंड मे बी उसको सोलार एनर्जी बुला सकते हो, लेकिन सोलार पावर डज नॉट वर्क ऑन हीट, it works on light. Solar power works on light, not on heat, इसलिए सोलार अलग है. फिर जियोथर्मल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हीट एनर्जी. केमिकल एनर्जी मतलब जो हम खाना खाते हैं, द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी एंड दैट इज केमिकल एनर्जी. बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होता है. सन में सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, यूरेनियम में न्यूक्लियर एनर्जी. बट when science developed properly, scientists found out कि ये सारी एनर्जी सुपरफिशियल है. तुम उनको डीपर एंड डीपर एंड डीपर व्हेन यू स्टडी, you find out that there are only 2 types of energy in the universe, kinetic and potential. बाकी सारी एनर्जीज इन दोनों के अलग अलग फॉर्म्स हैं. एंड दैट्स वाई in your textbook we will study only kinetic and potential in detail. इनका फॉर्मूला है, इनके सम्स आएंगे, बाकी का कोई फॉर्मूला और सम्स फिलहाल नहीं आएगा. So all forms of energy are finally kinetic and potential energy, and kinetic plus potential is equal to mechanical energy. Let's understand kinetic energy. Kinetic energy directly depends ऑन V. ये अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन V, एंड V मतलब वेलोसिटी, जिसको हम बेसिकली स्पीड बुलाते हैं. दिस माउस, इफ आई होल्ड इट इन माई हैंड, this mouse does not have any velocity. It is not moving. Therefore,
kinetic energy of mouse is 0. But if I have an object which is constantly moving, so there is some particular speed with which this ball pen is moving, this moving item has kinetic energy. So kinetic energy is an energy which is directly dependent on the velocity. Higher the velocity, more kinetic energy. Less velocity, less kinetic energy. Let's read the textbook and understand more about it. A moving object can do work. A moving object can do work. It means it has energy. An object moving faster can do more work compared to slow. तो फास्ट मूव करने का मतलब है मोर वेलोसिटी. अ मूविंग बुलेट, अ ब्लोइंग विंड, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन ऑल डू वर्क. Think about it one by one. A moving bullet is dangerous because it has high kinetic energy. मूविंग बुलेट के रास्ते में तुम आ गए तो बुलेट अंदर घुस जाएगी. उसमें उतनी एनर्जी है कि तुम्हारी बॉडी को छन्नी कर देगी. Blowing wind has so much energy that trees can fall because of it. A rotating wheel has energy so that the potter can make the pots. Or a rotating wheel can drive you from Ahmedabad to Mehsana in 2 hours. And a speeding stone, चोट से फेंका हुआ स्टोन, उसके अंदर एनर्जी है. तो जब एक बड़ा पत्थर किसी ने फेंका है तो उसके रास्ते में नहीं आते, वहां से दूर भाग जाते हैं. कॉमन सेंस. इवन अ डॉग नोज that when somebody throws a stone, go away from that stone because that stone has energy to hurt him. How does bullet pierce the target? बुलेट अपने टारगेट का के अंदर कैसे जाता है? How does the wind move the blades of the windmill? Objects in motion possess energy and we call this energy as kinetic energy. Falling coconut, काइनेटिक एनर्जी. माधु बुढ़ी जाए. स्पीडिंग कार, काइनेटिक एनर्जी, उड़ा भी देसे तमने. अ रोलिंग स्टोन, काइनेटिक एनर्जी, एनी नीचे આવી જશો, ચગદાઈ જશો. अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, दे ऑल हैव काइनेटिक एनर्जी. रनिंग एथलीट मतलब रनिंग रेस में भागने वाला आदमी जो फुल स्पीड में भाग रहा है, अचानक तुम उसके बीच में आ गए तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं, तुम दोनों गिर जाओगे. बिकॉज उसकी बॉडी की पूरी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होगी और तुम गिरोगे. सो एनीथिंग विच इज मूविंग हैज काइनेटिक एनर्जी. इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. ये हो गया उसका डेफिनेशन. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. And kinetic energy increases with speed और velocity, जो तुमको समझना है. मेरे हाथ में अभी एक पेन थी और वो पेन को मैं हिला रहा था ऐसे. फिर एक पंखा होता है, यूएसबी चार्जिंग वाला, जो ऐसे हवा खाने के लिए होता है. फिर एक होता है सीलिंग फैन. और एक होता है जेट प्लेन का पंखा. तुम बिना सोचे समझे 1 सेकंड में मेरी हिलती हुई बॉल पेन के बीच में उंगली रख सकते हो. बिकॉज द मिनट यू इंटरप्ट, इट विल स्टॉप. यू कैन इंटरप्ट अ बॉल पेन बिकॉज इट हैज लो वेलोसिटी, लो स्पीड, लो काइनेटिक एनर्जी. ये जो पंखा आता है ऐसे यूएसबी चार्जर हवा खाने के लिए, उसमें ब्लेड्स आर नेकेड. द ब्लेड्स आर आउट इन द ओपन. कोई जाड़ी वाड़ी नहीं आपता. केम? बिकॉज ये बहुत स्लो घूमता है. उसको इतने डिस्टेंस पे रख दिया तो हवा नहीं आएगी. इट हैज टू बी लाइक दिस.
It's a innocent object, the speed is not much, therefore you can stop this also by just putting your finger inside, कुछ नहीं होगा. बट सीलिंग फैन को रोकना इजी नहीं. चालू सीलिंग फैन के अंदर अगर हाथ डालने की कोशिश की तो लग जाएगा, लगेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, बट हाथ कटेगा नहीं, फॉर श्योर. ट्राई करके देख लो. नहीं हाँ. बट जेट इंजन के पंखे में चिथरा चिथरा थी जाए. यू कैन नॉट इवन इमेजिन वॉट विल हैपन if your hand goes in the fan of jet engine. More velocity, more kinetic energy, and more kinetic energy is dangerous. You have to stay away. એટલા માટે પંખાને સીલિંગ ઉપર રાખ્યો કે હાથ પહોંચે જ નહીં. અને જો સ્ટેન્ડ ફેન હોય તો સ્ટેન્ડ ફેનનો પંખામાં જાળી આપેલી હોય છે જેથી કરીને આંગળી જાય નહીં, નહીં તો આંગળી કપાઈ જશે. So kinetic energy is directly related to motion. But there is a formula of kinetic energy here which we are going to derive now. It's very easy. We have to only assume a moving object. एक horizontal plane है. टेक्स्ट बुक में बहुत बेकार दिया है बट मैं समझा रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ लो. तो दिस इज माई बॉल. बॉल का मास m, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0, और बॉल को मारा हमने फटका तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल. अब जैसे ही बॉल को फोर्स अप्लाई होता है द बॉल स्टार्ट्स टू गो एंड ट्रैवल फर्दर, और बॉल की वेलोसिटी 0 की जगह हो जाती है v. Ball starts to travel and travel some distance s and it takes some time. This is all basic from motion chapter से करते आ रहे. तो जब बॉल को फोर्स पड़ता है तो बॉल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाती है, एंड वेलोसिटी है बॉल में, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. बट कितनी काइनेटिक एनर्जी है दैट we will start like this. I'm explaining, so I'm starting at a different point. We know that work done and energy are same thing. बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि बॉल हिल रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉल. Okay. Now if kinetic energy is equal to work done, so can I say kinetic energy is equal to W? But W, work done, is force into displacement. Yes. But force, F is equal to ma. Yes. But go back to the motion chapter and use one formula from the 3 formulas of motion. The 3 equations of motion में v square minus u square is equal to 2as. 2a को नीचे ले जाओ तो v square minus u square upon 2a is s. But u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉल वॉज नॉट मूविंग. बॉल को जब तक फटका नहीं पड़ा था तब तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. तो u 0, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर में ये 0 हो जाएगा. सो यू विल गेट v स्क्वायर अपॉन 2a. सब्सटीट्यूट दिस इन काइनेटिक एनर्जीज इक्वेशन. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m a v स्क्वायर अपॉन 2a. a कैंसल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज एम वी स्क्वायर बाय 2, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट वी कॉल इट एज हाफ एम वी स्क्वायर. एम वी स्क्वायर बाय 2 ही है बट दिस इज हाउ वी राइट इट.
दिस इज हाउ वी विल बाय हार्ट इट. इजी नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. देयर वॉज एन ऑब्जेक्ट विच वॉज स्टेशनरी. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. फटका पड़ा, फोर्स मिला, तो वो आगे भागा, वेलोसिटी पकड़ ली. अब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. एंड वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी आर सेम. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉल. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट F इज इक्वल टू ma. तो MAS हो गया, और S की वैल्यू जो निकाली वो सब्सटीट्यूट करो, यू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². आई होप समझ में आया हो. अब मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझा रहा हूं. टेक्स्ट बुक क्या कहती है देखो, विच इज जस्ट डिफरेंट. इट्स नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा स्टाइल अलग है. वी स्टडीड द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन where there is initial velocity u, final velocity v, acceleration a, displacement s, force f, time t, सब कुछ है. तो उसमें एक फॉर्मूला था v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, जिसमें से हमें मिलता है s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a. मैंने भी किया, ये रहा. आगे we know F is equal to ma. Thus work done by force F, work done by force F मतलब work done is force into displacement, but force is equal to ma and S v² minus u² upon 2a. बट तो ये हाफ mv² माइनस u² कैसे आया? देखो a कट हो गया, a कट, तो अपॉन 2 का हाफ mv² माइनस u², हाफ mv² माइनस u². बट u तो 0 है, तो u खत्म हो गया, क्या बचा? हाफ mv². So work done by the moving ball is half mv². मूविंग बॉल ने कितना वर्क किया? हाफ mv². But that work done is equal to the change in kinetic energy. So work and energy are same. Work done is half mv². Therefore we can say kinetic energy is also half mv². That's the derivation, which I personally don't like because the flow is टूटा फूटा. परफेक्ट फ्लो जो मैंने समझा है वो है कि वर्क और एनर्जी सिमिलर होती है, वर्क इज डन देन एनर्जी चेंजेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो योर चॉइस, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². तो वो करना पड़ेगा. तो थोड़ा इस इक्वेशन को खोदते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं. वी डिराइव द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². तो एक पंखा जिसका वजन 10 किलो है और दूसरा सेम साइज का प्लास्टिक का पंखा जिसका वजन 1 किलो है, दे बोथ आर मूविंग एट सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. Who will create more damage if you put your hands? Or who has more kinetic energy? अब तक हमने कहा kinetic energy directly depends on velocity, but it also depends on mass. So kinetic energy के पैराग्राफ के बाजू में था एक सेंटेंस that kinetic energy of any object directly depends on, I said V, but वो 8th स्टैंडर्ड तक का नॉलेज था,
it also depends on mass. More mass has more kinetic energy, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर मास का रोल है. और मान लो कि मास सेम है, ये पंखा भी 1 किलो का, ये भी 1 किलो का, तो वेलोसिटी से फर्क पड़ेगा. 5 मीटर और 51 मीटर पर सेकेंड में फर्क होता है. सो इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. Kinetic energy is directly proportional to the square of velocity, or you can also say kinetic energy is proportional to velocity. तो जो फॉर्मूला में है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. So kinetic energy depends on mass and velocity. Numerical. It's very easy. An object of mass 15 kg is moving with uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? Half mv square. Half 15 v square. (120 joules is the kinetic energy possessed by the object. Simple. What is the work to be done to increase the velocity of car from 30 to 60 if the mass of the car is 1500 kg? अब क्वेश्चन है, what is the work to be done? कितना काम करना पड़ेगा अगर कार की इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर को फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर बनानी है तो, और कार का वजन है 1500 kg. तुम खुद सोचो, 30 की स्पीड वाली चीज को 60 ले जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो एनर्जी डालनी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा, लात मारनी पड़ेगी बैट से या इंजन से, कुछ तो करना पड़ेगा. एंड दैट कुछ तो इज कॉल्ड वर्क डन. And how much work needs to be done to increase the speed? That's what we have to find out. मुझे सिर्फ इतना पता है, work done is force into displacement. S तो है नहीं, displacement भी नहीं है, F force भी नहीं है, कोई बात नहीं. F is equal to ma. ए भी नहीं है, तो ए इज v माइनस यू बाई टी. लेकिन टी नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है. व्हाट इज द गड़बड़? आई टेल यू. You cannot find out the work done by standard format. You have to think that the car is moving. The car is moving. तो ये therefore car has kinetic energy. True. मूविंग कार के पास काइनेटिक एनर्जी है. Therefore, work done is equal to डेल्टा काइनेटिक एनर्जी. ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है दैट इज कॉल्ड डेल्टा. डेल्टा मतलब चेंज, फर्क. डेल्टा हाइट, चेंज इन माई हाइट. डेल्टा वेट, चेंज इन माई वेट. पहले कितना था, अब कितना है. तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज, इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन. एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर. देखो ध्यान से, कार इज मूविंग देयरफॉर कार इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी. और इस न्यूमेरिकल में ये सबसे इंपॉर्टेंट नया कॉन्सेप्ट सिखाया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल.
कोई भी चेंजेस फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v square because kinetic energy's formula is half mv square, but initial kinetic energy is half m u square. Okay, initial kinetic initial speed, final kinetic final speed. हाफ m कॉमन, अंदर बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अब वैल्यूज डालो. बट सबसे बड़ा पाप हो गया है जो मैं ही सिखाता हूं और मैंने रूल ब्रेक कर दिया. आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स, डू नॉट प्रोसीड विद द सम टिल यू कन्वर्ट योर स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर यूज नहीं कर सकते. तो 30 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने का सीखो. इनिशियल वेलोसिटी इज 30 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 30 किलोमीटर ट्रेवल्ड इन 1 आवर, मीन्स 3000 meters traveled in 3600 seconds. 0.00065 6 5 by 6 meter per second. This is initial velocity. Final velocity 60 kilometer per hour, मतलब 60 किलोमीटर ट्रैवल्ड इन 1 आवर. 1 मिनट गड़बड़. 30 किलोमीटर इज 30,000 मीटर, मतलब 50/6 आएगा, मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड आएगा. और v जो है वो है 60 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 60,000 मीटर इन 3600 seconds. 6 6 600 is 50/3 मीटर पर सेकेंड. ये करने की जरूरत नहीं है. देर इज अ शॉर्टकट where you can directly remember one ratio and multiply it, and that ratio is 5/80. 5/80 एक मैजिक नंबर है. इनिशियल वेलोसिटी u इज 30 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई 5/18. 3 10 3 6 2 5 2 3 25/3 आ गया. फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई 5/18. 6 10 6 3 50/3. तो शॉर्टकट याद रखो, 5/18 मल्टीप्लाई करने से किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड बन जाता. और ये है सामने लॉन्ग कट मेथड भी. एनीवेज, कमिंग बैक टू द सम, आई एम रीस्टार्टिंग इट. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 to 60? Initial velocity 30 km per hour converted to 25/3 meter per second. Final velocity चाहिए 60 km per hour converted to 50/3 meter per second. Mass of the car is given as 1500 kilograms. How much work has to be done? तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ये सब में पहली बार, that work done is equal to change in energy, and specifically kinetic energy because car is moving. Change in kinetic energy is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So half m v square minus half m
u square. Half m common v square minus u square. Half m, v है 50/3 का स्क्वायर, माइनस u है 25/3 का स्क्वायर. दैट्स ऑल. सिर्फ कैलकुलेशन करना सीखना है, विच इज नो बिग डील. 2 and 1500 कैंसल, 750. 2500/9 माइनस 625/9. थैंक गॉड एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. 2500 माइनस 625, 125, 1875/9. 3 250 जा, 3 3 जा. 250 into 1875/3, 156,250 joules. 156,250 joules of energy is required to increase the speed of the car from 30 km/h to 60 km/h. Kinetic energy of an object of mass m moving with velocity phi is 25 joule. Kinetic energy of the object of mass m, दिया ही नहीं है mass, velocity phi is 25 joules. तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 है और काइनेटिक एनर्जी 25 है, तो मास मिल जाएगा बहुत आसानी से. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. हाफ m पता नहीं, v 5 है और काइनेटिक एनर्जी 25 है. 2 सामने मल्टीप्लाई कर दो, 50 इज इक्वल टू m इंटू 25. मास मिल गया 2 kg. इजी. आगे पढ़ते हैं. व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड. वेलोसिटी को डबल कर दो मतलब 5 की जगह 10 कर दो, तो मास थोड़ी चेंज होगा, वो तो वही रहने वाला है. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. अगेन सेम फॉर्मूला. Kinetic energy is half mv square. Half mv square 100 joules. 2 cut or 10 square. एक और क्वेश्चन है. What will be its kinetic energy when velocity is increased 3 times? तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी. वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स का मतलब 5 का 5 3 जा 15 और मास वही है 2. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर 225 जूल्स. तो 3 पार्टिसिपेंट्स है फॉर्मूला में. काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, और हर बार 2 दिए होंगे, तीसरा अपने आप मिल जाएगा. सो व्हेन आई स्टार्टेड द सम, मुझे मास पता नहीं था, तो काइनेटिक एनर्जी थी, वेलोसिटी था, मास नहीं था तो ढूंढ लिया, और वो मास लेके दोनों टाइम काइनेटिक एनर्जी ढूंढ सकते हैं. The second most basic type of energy is potential energy.